اللہ کرے یہ مسجد بھی آباد رہے، اسے آباد کرنے والے بھی شاد رہیں۔ میں سفر کر کے آیا ہوں، تھوڑی سی ایک تکلیف ہے، 1 مہینہ پہلے اچانک ہوئی، انشاءاللہ ان لو آپ سب کی دعاؤں سے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اگر تقریر سننی تھی تو وہ آپ نے علماء کی سن لی ہوگی، ٹوٹی پھوٹی 2-4 باتیں سناؤں گا۔ ایک لہجہ میرا آپ میڈیا پہ سنتے ہیں، وہاں چونکہ میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور میں ذرا سنبھل کے باتیں کرتا ہوں وہی، مگر طریقے سے۔ یہاں ذرا مجھے اجازت دے دیں میں کھل کے بول لوں، ٹھیک ہے؟ آیے کریمہ کے الفاظ جو پڑھے مفسرین کے مطابق اس آیہ شریفہ میں اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا۔ تمام مفسرین یہی کہتے ہیں کیونکہ اولین مخاطب صحابہ کرام۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جس نے اپنی دنیاوی زندگی میں ایمان والا ہو کر میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، دیکھا ہو، ملاقات کی ہو، اور اس شخص کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو، ایسے شخص کو کہتے ہیں صحابی۔ صحبت سے بنا ہے، اس کو اتنا درجہ مل جاتا ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ میرا صحابی مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں دے، اور غیر صحابی جو صحابی نہیں وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے، تب بھی میرے صحابی کے درجے کو پہنچ سکتا نہیں۔ اب میں صرف اسی حدیث کو ہی بیان کروں، ساری رات لگ جائے۔ نماز میں بھی پڑھتا ہوں، نماز صدیق اکبر بھی پڑھتے تھے، نماز میں بھی پڑھتا ہوں، نماز فاروق اعظم بھی پڑھتے تھے، ذوالنورین شیر خدا رضی اللہ عنہم بھی پڑھتے تھے، مگر جو درجہ ان کا ہے وہ مجھے مل سکتا نہیں۔ یہ درجہ کیوں مل گیا؟ کیا ان کا قد زیادہ تھا؟ پوچھ رہا ہوں، کوئی ڈیل ڈال جس کو آپ باڈی کہتے ہیں، باڈی فیگر ڈفرنٹ تھی؟ کیا ان کی جسامت کوئی خاص تھی؟ نہیں، یہ درجہ ملا آقا کی زیارت سے، کسی ریاضت سے نہیں، آقا کی زیارت سے۔ جب زیارت سے اتنا درجہ ان کو مل رہا ہے، خود آقا کا درجہ کتنا ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اب وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں وہ بھی بشر ہم بھی بشر، تو وہ غلط کہتے ہیں یا صحیح؟ نہیں، صحیح کہتے ہیں، بشر ہونا تو صحیح کہتے ہیں، وہ بھی بشر یہ بھی بشر، مگر یہ مماثلت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ ہمارا کہنا وہ بشر ضرور ہیں، وہ بشر ضرور ہیں، ہم بھی بشر ہیں، مگر تقابل نہیں ہے۔ وہ کیسے بشر ہے کہ جبریل کی نورانیت سے ان کی بشریت افضل ہے، وہ بے مثل بشر ہے، وہ بے مثال بشر ہے، ان جیسا کوئی بشر نہیں۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، نعرہ تحقیق۔ ہو سکتا بھی
सोचा जा सकता भी अगर थोड़ा सा तवज्जो। कोई ना कोई स्टूडेंट जरूर होगा कॉलेज का, उर्दू में कोयला कहते हैं, पंजाबी में क्या कहते हैं? चलो हमजा निकल जाता है, कोला। केमिस्ट्री कीमिया में उस कोयले का नाम क्या है? कोई स्टूडेंट बैठा हो तो बताए। बिल्कुल सही, कार्बन। जिसने जवाब दिया उसका शुक्रिया। कार्बन एक चीज होती है जिसे उर्दू में हीरा कहते हैं, इंग्लिश में डायमंड। उसका कीमियाई नाम क्या है? कार्बन। बिल्कुल सही। कोयला भी कार्बन, डायमंड भी कार्बन। इसको चीची कहते हैं ना, छोटी उंगली उर्दू वाले छुंगली कहते हैं, छोटी उंगली। इसके नाखून के बराबर हीरा कितने का होगा? करोड़ों का होगा। ठीक है। और पाव भर कोयला $5-10 का, चलो कोई ज्यादा भी है तो 20 रुपए का, चंद रुपयों का, 100 रुपए का भी नहीं होगा। पाव भर कोयला 100 रुपए का, नाम उसका भी कार्बन है। छोटा सा 3 कैरेट का हीरा, नाम उसका भी कार्बन है। एक कहो ना दोनों को। तुम भी बशर, नबी भी बशर, उधर एक करना चाह रहे हो। कोयला भी कार्बन है, हीरा भी कार्बन है, क्यों नहीं एक कहते हो? कल को अंगूठी में जरा कोयला, भले तरस वाले ना, पहनो ना। आप तो कहते हो कोयले की दलाली में सर मुंह काला, हीरे की दलाली में तो कोई नहीं कहता। पता चला सिर्फ नाम एक होने से बराबरी नहीं होती। नबी बशर हैं, हम भी बशर हैं, बराबरी। उनकी बराबरी खलीलुल्लाह ने नहीं की तो हम कैसे कर ले? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबियों रसूलों में सबसे अफजल हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। कल क़यामत के दिन वो भी मेरे नबी का मुंह देख रहे होंगे। आला हजरत फरमाते हैं, माओ शुमा तो क्या के खलीले जलील को कल देखना के उनसे तवक्को नजर की है। वो भी देख रहे होंगे कब इस आका के होंठ हिले और रहमत के दरवाजे खुले। समझ आ रही है बात? ये मैं सिर्फ झलकियां दिखा रहा हूं। वो सहाबा जिनके ईमान को मेयार बताया गया, वो भी नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, साहिब निसाब थे, ज़कात देते थे, साहिब इस्तिताअत हज करते थे। मगर उनका ईमान आने वालों के लिए नमूना है। क्या है? नमूना है। मुझे और आपको गौर करना पड़ेगा कि वो क्या बात थी कि अल्लाह ताला को उन सहाबा का ईमान बहुत पसंद आया। सिर्फ झलकियां, 2 झलकियां, उसी में तकरीर समेटूंगा। आज हम अहले सुन्नत व जमाअत, क्या लफ्ज कहे मैंने?
चाल चली है दूसरों ने वल जमात। हम अहले सुन्नत व जमात, वो कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात। तो क्या अलिफ लाम वो भी ग्रामर के हिसाब से गलत लगाने से वो सच्चे हो जाएंगे? जब तुमने गलती को बुनियाद बनाया है गलत रहोगे। अपने ही उस्ताद से पूछ लो कि अहले सुन्नत वल जमात लिखना दुरुस्त है या नहीं। अपने ही उस्ताद से पूछ लेना, जब वो कहेगा ये ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त नहीं, तो जो है ही गलती, उस गलती को लगाने से तुम सुन्नी हो सकते। अगर पहली ईंट टेढ़ी रखी है तो भले सुरैया, आसमान सुरैया से मुराद कोई औरत नहीं है, कहकशां को कहते हैं जहां सितारे जमा होते, वहां तक अगर तुम दीवार बना लो टेढ़ी रहेगी। खिश्ते अव्वल चूने हद में मार कज, ता सुरैया मी रवत दीवार कज, टेढ़ी रहेगी। और जिन्ना दी नीस सीधी नहीं, जिनकी बुनियाद ही सीधी नहीं, वो सीधे हो सकते। ऊंची पक्की बात है ना? ये दर बदर फिरने वाले आज नहीं मानते, कल मानेंगे। कल का मानना काम। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। है मुनकिर आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे क़ियामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे क़ियामत में अगर मान गया। कल का मानना काम, आज मान। अच्छा, मस्जिद में बैठा हूं, मस्जिद भी बड़ी मुबारक, महीना भी मुबारक, रातें भी मुबारक। वल फज्र वल यालिन अश्र, अक्सर उलमा ने यही 10 दिन करार दिए। सच बात कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से इन लोगों को देखा है, करते कुछ और हैं, कहते। मुझसे हलफ उठवा लें जैसे चाहें, कलेमा पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 1987 1987 फरवरी का महीना था, मैं उम्रा करके आया बगदाद शरीफ। हजरत सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के रोजे पर एक शख्स को मैंने देखा जालियों से चिमटा हुआ, मुंह रगड़ रहा है। मैंने कहा ये अपना नहीं लगता। फिर मैंने देखा कि वो झुका, जब उसने मुंह फेरा तो पता चल गया कौन है। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा मेरा नाम कौकब नूरानी उकाड़वी, आप नहीं जानते, आप इंडिया के हैं, मैं पाकिस्तान के हूं। बाहर जाके क्यों कहते हो मजार चूमना शिर्क है? बाहर जाके क्यों कहते हो? अभी क्या कर रहे थे आप, क्यों झुके हुए थे? कहने लगे मैं फलाने होटल में ठहरा हुआ हूं, आप आए ना, वहां बात होगी बैठ के। मैंने कहा नहीं, इतना बता दो बाहर जाके क्यों कहते